ओके, सो लास्ट टाइम हमने कहा था, किया था, ये वाला हमने आपको कहा था, आप ये लोग देख लीजिएगा कि दैट R is an equivalence relation on A, then R inverse is also an equivalence relation on A. I had asked you to do this, so कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिनका नहीं हुआ है वो एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं. This belongs to R for all x because R is reflexive. अब अगर R reflexive है, सॉरी, तो ये अगर R को बिलोंग कर रहा है तो ये R इनवर्स को बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स, दैट मींस R इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट R इनवर्स में लेते हैं. दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू R इनवर्स मींस y, x बिलोंग्स टू R. Now R is an equivalence relation, therefore it's symmetric, so that tells you y, x belongs to R using the symmetric property of R. अब ये इसको बिलोंग कर रहा है, so by definition y, x will belong to R inverse, so this tells you that R inverse is symmetric. Similarly R inverse में, तो by definition y, x and z, y will belong to R. Now z, y and y, x belongs to R and R is transitive, so this tells you z, x belongs to R, and by definition x, z will belong to R inverse, that tells you R inverse is transitive. So इस तरह से अगर R transitive है, sorry, R एक equivalence relation है on set A, then R inverse will also be an equivalence relation on set A. Okay, next question is, let R be a relation set of integers Z defined by A congruent to B mod 3. Congruent यहाँ this 3 line means congruent to B, show that it's an equivalence relation. हम 3 के लिए कर रहे हैं, you can do it for any number. So any odd number, not any number, any odd number. So A is congruent to mod 3. This means that A minus B is divisible by 3, या multiple of 3. So I can write as A minus B is 3 times K, where K is some integer. और ये RB set of integers पे ही है relation. Now reflexive के लिए हमें prove करना है X is congruent to X mod 3. Now X congruent to X mod 3 means X minus X is 0 mod 3, and 0 times any multiple of 3 satisfies this property because 0 belongs to Z, therefore this belongs to R for all Z, X belonging to Z, hence it is reflexive. Okay, symmetric, let X minus Y belong to R. This means X minus Y is equal to 3K for some K belonging to Z. So this I can write as y minus x equal to 3 into minus k for minus k belonging to z. दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, and अब k इंटीजर है, so minus k भी इंटीजर है. That tells you y minus x belongs to R, therefore R is symmetric. देखिए यहाँ पे जब हमने कहा था a minus b is a multiple of 3, that is equal to 3k, where k belongs to z, तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि k पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यहाँ अगर हम पॉजिटिव के लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसको नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट स्टिल इट्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन, सो दिस विल बिलोंग टू R. ट्रांजिटिव, let x, y and y, z belong to R. That means x minus y equal to 3k and y minus z is equal to 3l, where k and l are integers. Now x minus z you can write as x minus y plus y minus z. Y cancel हो जाएगा, so this is there. Now x minus y, this I can replace by 3k because here it's 3k, and y minus z I write it as 3l because it's 3l over here. So this is equal to 3k plus 3l, which I can write as 3 times k plus l. K is an integer, L is an integer, so k plus l is also an integer. That means x minus z is a multiple of 3, which tells you x minus z belongs to R, that is R is transitive. Therefore, A congruent to B mod 3 is an equivalence relation on Z.
सो 3 की जगह अगर हम 5 ले लेंगे तो जहां जहां 3 है इसमें उसको आप 5 कर देंगे तो एग्जैक्टली द सेम ट्रू होल्ड्स। ओके, अब एक बार आपने इक्विवेलेंस क्लास जान लिया क्या है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देख लिए क्या है, और ये भी हमने देख लिया अगर R और S दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, लेकिन उनका यूनियन जरूरी नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन हो। और अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, और कुछ और जो थोड़ी प्रॉपर्टीज हमने देखी है वो ठीक है। एक बार आपका प्रूफ हो गया R इक्विवेलेंस रिलेशन है, then the next thing that we have to consider is equivalence class. अब वो क्या होती है? Let R be an equivalence relation on set A. Then the set of all elements of R that are related to X is called as equivalence class of X under R. माने अगर एक एलिमेंट हमने ले लिया X belonging to R, so जितने भी एलिमेंट्स Y X से रिलेटेड है, that is all Y which satisfy this condition that X is related to Y will form a set, and that is called as equivalence class of X under R. Under R जरूरी है क्योंकि अगर आपका रिलेशन चेंज हो गया तो आपका ये भी इक्विवेलेंस क्लास भी चेंज हो जाएगा नेचुरली, क्योंकि ये किस नए रिलेशन में X किस किस के साथ कैसे रिलेटेड है, दैट विल डिपेंड ऑन द रिलेशन इटसेल्फ. सो आई कैन राइट इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय X इज रिटन एज, X को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, दिस इज सेट ऑफ ऑल Y such that Y belongs to A and X comma Y belongs to R. So this is how you define the equivalence class generated by A under R. अब A over R is set of all equivalence relation X where X is the element of A. माने सेट A के जितने एलिमेंट्स जो भी इक्विवेलेंस क्लास जनरेट करते हैं, अगर हम उनका सेट ले लें, then that set is denoted by A by R, that is set of all equivalence classes of elements of A under equivalence relation R, and this is called as quotient set of A by R. Okay, so this is the definition of equivalence class. Okay, so ये definition हमने लिखी थी. Now let's see. अभी हमने प्रूव किया था that A congruent to B mod 3 is a equivalence relation on set of integers. Now find, एक बार आपके पास है कि अगर एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप उसके इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर सकते हैं. So the next question is find equivalence classes of R where the relation R is given by set of all ordered pairs XY such that XY belongs to Z, X is R related to Y if and only if X is congruent to Y modulo 3. Okay, so now let's see how do we find the equivalence classes generated by R. Now we have already proved that R is an equivalence relation. The equivalence class generated by A is set of all X belonging to Z such that X is R related to A. X is R related to A means X is congruent to A modulo 3. That means X minus A is divisible by 3. So which is same as writing that X minus A is equal to 3K for some K, for some integer K. And this I can also write as X is equal to A plus 3K for K belonging to Z. So ये सारी डेफिनेशंस इक्विवेलेंट है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगती हो वो आप यूज कर सकते हैं. Okay, now I start with 0 element in set of integers. तो equivalence class generated by 0 क्या होगी, set of all Z belonging to X such that X is equal to 3K plus 0. देखिए यहाँ पे X is equal to A plus 3K था, अब A की जगह हमने 0 रख दिया, so 3K plus 0 where K belongs to Z. अब X is equal to 3K, K belongs to Z, so K की वैल्यू अगर आप -2 लोगे तो -6 आ जाएगा, -1 लोगे 3 आ जाएगा, 0 लोगे 0 आ जाएगा, 1 लोगे 3 आ जाएगा, 2 लोगे 6 हो जाएगा, ऐसे इस साइड भी और इस साइड भी सब हो जाएगा. So this is equivalence class generated by 0. इसको और कैसे समझ सकते हैं? इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0 मींस अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो
तो आपको 3 ही रिमाइंडर्स मिल सकते हैं, 0, 1 एंड 2। तो 0 रिमाइंडर कब मिलेगा? जब नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा। So equivalence class generated by 0 will contain all the numbers that are multiples of 3. So इसीलिए ये देखिए ये सारे नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 3 में हमने लिख दिए, यहाँ 9, 12 आएगा, यहाँ पे -9, -12 एंड लाइक दैट आएगा। Now to find equivalence class generated by 1, एक ही जगह हमने यहाँ पे 1 कर दिया, तो आ गया 3k + 1। अब आप इसमें वही कर सकते हो, k की वैल्यू जब आप -2 पुट करोगे तो -5 आएगा, k की वैल्यू -1 पुट करोगे तो -2 आएगा, k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 आएगा, 2 पुट करोगे तो 7 आएगा, एंड लाइक दिस। So this is equivalence class generated by 1. That means set of all numbers which when you divide by 3 give you remainder 1. इसी तरह 2 के लिए आप +2 कर दो, एक ही जगह 2 रख दो, एंड लाइकवाइज यू विल गेट दिस सेट। और इस सेट में से आप कोई भी एलिमेंट लोगे और उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। Now let's see, इसके बाद अगर हम इक्विवेलेंस क्लास जनरेट करते हैं तो क्या होगा? 2 के बाद आता है 3। 3 को हमने 3 से जनरेट करते हुए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3k + 3, माने एक ही जगह 3 लिखा है, k belongs to z. Now this I can write as 3 कॉमन लेके k + 1. k is an integer, so k + 1 is an integer. So this equivalence class is same as equivalence class generated by 0, क्योंकि अगर इसको हमने इक्वल टू 3l लिख दिया, suppose I write this as 3 times l, where l is 3k, तो ये डेफिनेशन हमारी 3l के साथ थी और ये हमारी 3k के साथ है, k भी इंटीजर है, l भी इंटीजर है, so this definition coincides with this definition, so this equivalence class will be same. So इसलिए अगर आप जैसे equivalence class generated by 4 करोगे, you will find that equivalence class generated by 4 will be same as equivalence class generated by 1, and like this. माने 0, 1, 2 तो आपके डिस्टिंक्ट आएंगे और उसके बाद जितने भी आप करोगे वो इन्हीं के रिपीटिशंस आएंगे। So you have just 3 distinct equivalence classes for A congruent to B mod 3. इसी तरह अगर आप A congruent to B mod 5 करोगे तो आपके पास 5 डिस्टिंक्ट क्लासेस आएंगे। कैसे आएंगे? 5 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या रिमाइंडर बचेगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो माने 5 नंबर्स ये होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग 5 डिस्टिंक्ट क्लासेस आएंगे। बट अगर उसके बाद आप फिर से 5, 6, 7 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास करना स्टार्ट करोगे तो वो फिर आपका रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। Hence x congruent to y mod 3 has 3 distinct equivalence classes 0, 1 and 2. एक बार देख लो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू। ये लास्ट वाली डेफिनेशन हम लेके चले, आप कोई भी ले सकते हैं, सब एक ही हैं, जस्ट okay. Next is define R on Z plus by A comma B is R related to C comma D if and only if AD plus is equal to B plus C. Actually this should be on Z plus cross, नहीं ठीक है, हाँ, this should be Z plus cross Z plus. ये आप करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम ये ordered pairs ले रहे हैं, so it should be Cartesian products of two sets. So define
R on Z plus cross Z plus by A comma B is R related to C comma D if and only if AD is equal, A plus D is equal to B plus C. Now show that R is an equivalence relation. Find see this is square bracket. So find equivalence class generated by the element 2, 5. And third is find the equivalence class generated by 1, 3. क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स सेट के क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो हम इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करेंगे. इधर जो हमारे सेट के एलिमेंट्स थे क्या थे, नंबर्स थे, तो हमने इक्विवेलेंट क्लास जनरेटेड बाय नंबर्स की बात करी थी. ओके, सो फर्स्ट लेट्स प्रूव दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ a comma a is always r related to a comma a. देखिए इधर क्या है, ये दो नंबर्स को ऐड करो और ये दो नंबर्स को ऐड करो तो आपका सम बराबर होना चाहिए. अगर ये है तो इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट द सेम थिंग. सो दिस इज रिफ्लेक्सिव. फॉर सिमेट्रिक a comma b is r related to c comma d implies ad a plus d is equal to b plus c. by definition ये जो हमें दिया गया है. अब हमें पता है अगर कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल B है तो कैपिटल B विल बी इक्वल टू कैपिटल A. तो इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए. And this tells you C comma D is equal to A comma B because commutativity holds in set of integers. तो वो हमने यूज कर लिया, so उससे हमें ये मिल गया. That tells you that R is symmetric. अब ट्रांजिटिव के ऊपर आते हैं. A comma B is R related to C comma D and C comma D is R related to E comma F. This means A plus D is equal to B plus C, C plus F is equal to D plus E. अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं. So A plus D plus C plus F is equal to B plus C plus D plus E. अब ये सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये D D से कैंसिल हो गया, C C से कैंसिल हो गया. That tells you A plus F is equal to B plus E, which tells you A comma B is R related to E comma F. That tells you that R is transitive, therefore R is an equivalence relation. देख लीजिए एक बार, कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लीजिए. Okay, next let's come to find what is the equivalence class generated by 2 comma 5. So 2 comma 5 equivalence class generated by is by definition set of all A comma B such that A comma B is R related to 2 comma 5 where A and B belong to Z plus. आप 2 comma 5 is R related to A comma B भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा because R is a equivalence relation, तो सिमेट्रिक होगा. तो आप चाहे इसको इधर रखिए, इसको इधर रखिए, या इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए. इट्स वन एंड द सेम थिंग. Now this by definition means A plus 5 is equal to B plus 2. This is how, see, this relation was defined. So वैसे ही हमने इसको डिफाइन कर दिया. अब बस हम नंबर्स देते जाएंगे. अब अगर जैसे हमने A को 1 दिया तो इधर क्या हो गया, 6 हो गया, तो हमें B को 4 देना पड़ेगा. सो 1, 4. A को हमने 2 दिया तो ये 7 हो गया, तो यहाँ B को हमें 5 देना पड़ेगा. And like this you will have all of the ordered pairs which satisfy this condition, and therefore this will form the equivalence class generated by 2 comma 5. Okay, in the same way equivalence class generated by 1 comma 3 क्या होगी, set of all ordered pairs A comma B such that A comma B is R related to 1 comma 3
A and B belong to Z plus. Now this by definition is 1 plus B is equal to 3 plus A. And again एक वैल्यू A को दे दीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू कंप्यूट कर लीजिए, इस तरह सारा करेंगे. सो दिस इज इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1, 3. Okay, next question is, take a set A which contains the elements 0, 1, 2, 3, 4 and इसके ऊपर जो रिलेशन है वो डेफिनेशन की बजाय ऑर्डर्ड पेयर्स के टर्म्स में डिफाइंड है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. And it is said that it is an equivalence relation on A. Now find distinct equivalence classes of R. अब इसको कैसे करेंगे? Just think how equivalence class की हमने क्या definition बताई है और उसके अकॉर्डिंग सोचिए हम इसके equivalence classes को कैसे वो करेंगे. कैसे करेंगे बताओ? इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर्स के टर्म में तो हम इसकी बात करते हैं. Equivalence class generated by a set of all x elements x which are related to A. So अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट लिया हमने, 0 एलिमेंट लिया. अब 0, 0 belongs to R means 0 is related to 0, तो 0 यहाँ आ गया. 0, 4 belongs to R, that means 0 is related to 4, तो यहाँ 4 आ गया. अब यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 से क्या रिलेटेड है? 4 से 0 रिलेटेड है, तो 0 आना चाहिए, तो ऑलरेडी है. 4 से 4 रिलेटेड है, तो वो भी ऑलरेडी है. सो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0. अब इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1 देखिए. 1 से 1 रिलेटेड है, तो 1 यहाँ लिख दिया. 1 से 3 रिलेटेड है, तो 1 यहाँ 3 यहाँ लिख दिया. 3 से 1 रिलेटेड है, तो 1 तो ऑलरेडी है. 3 से 3 रिलेटेड है, सो 3 ऑलरेडी है. सो दिस इज इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1. 2 के साथ खाली 2 ही रिलेटेड है, सो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया. अब देखिए इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने सारे इक्विवेलेंट क्लासेस बराबर होंगे. लाइक यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं 0 एंड 4, तो 0 तो ये इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0 को आपने ये लिख रखा है. सो दिस विल बी इक्वल टू आल्सो इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 4. ये अभी हम थ्योरम करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा, बट इस ब्रैकेट से भी आप समझ सकते हैं. इधर इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1 इज 1, 3. सो 1 तो यहाँ है, बचा क्या 3. सो दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 3. सो इस तरह से हम, अगर हमें डेफिनेशन के बजाय रिलेशन दिया है,
तो यूजिंग द सेम डेफिनेशन, ये वाला, we can find the equivalence classes generated by distinct equivalence class generated by R. अब देखिए डिस्टिंक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे हमने देखा है, अभी हमने इसको आपको करा नहीं है बट आप 3 और 4 का चेक कर सकते हैं। जैसे 0, 1, 2 हमने चेक किया, अलग अलग आए। जब हमने इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 3 किया तो हमने देखा इट कम्स आउट टू बी सेम एज 1। इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 4 जब हमने किया तो हमने देखा इट कम्स आउट टू बी सेम एज इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0। तो distinct equivalence classes of R will be this only। उस केस में आप ये नहीं लिखेंगे, ये तो हमने खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखिए हमें रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लास हमने बनाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट R बी रिलेशन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 3। जो हमने किया था A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो 3 मींस A माइनस B इज डिविजिबल बाय 3, वही वाला रिलेशन है। Which of the following equivalence classes are equal? तो अब हमें इक्विवेलेंस क्लास दिए गए हैं, हमें रिलेशन पता है क्या है, अब हमें ये बताना है कौन से इक्विवेलेंस क्लास इक्वल हैं। अब मॉडुलो 3 है तो मॉडुलो 3 में हमने आपको बताया था क्या होता है, 3 इक्विवेलेंस क्लास थे, 0, 1, 2। 0 मींस उसमें सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 थे। इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1 में क्या था, वो सारे नंबर्स जिनको आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। और इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 2 में क्या था, वो सारे नंबर्स जिनमें आप अगर नंबर को डिवाइड करते हैं सो यू गेट अ रिमाइंडर 2। तो वही डेफिनेशन हम यूज करते हैं। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला इक्विवेलेंस क्लास है, कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो 3 मींस 7 इज इक्वल टू 3k प्लस x। दैट मींस अगर हम k को k को 2 लेंगे, k को 2 लेंगे तो हमारा x आ जाएगा 1। मींस 7 इज सेट ऑफ ऑल नंबर, इस इक्विवेलेंस क्लास, मतलब ये वो वाला इक्विवेलेंस क्लास है जिसमें हर नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। 4, ये 4 का क्या है, 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड 3 मींस 4 इज इक्वल टू 3k प्लस x। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें भी अगर k की वैल्यू 1 आ जाती है सो the remainder will be 1, so that means equivalence class generated by 4 and 7 are same। क्योंकि इसमें देखिए ये k और ये k फर्क हो सकते हैं बिकॉज दीज आर इंटीजर्स, बट अगर दोनों का रिमाइंडर सेम है देन इन दैट केस क्या होगा, 7 minus 7 is congruent to x mod 3 हो जाएगा और x is congruent to 4 mod 3 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, इसीलिए ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस हमारे बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट आप चेक करिए कौन से दो, ये तो देखिए ये वाला और ये वाला तो हमने कर दिया। अब चेक करके बताइए -4 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। चलो अच्छा माइनस वाला भी छोड़ो, पहले 17 वाला चेक करो किसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है आ जाए। आई रियली डोंट नो, लेट्स स्टार्ट विद माइनस ओनली। 7 की जगह आप -4 रख देंगे और सेम डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे।
हम -4। -4 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 17। करेक्ट, -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17। देखिए कैसे, -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 3 मीन्स -4 इज इक्वल टू 3k प्लस x। अब अगर आप k को -2 लेते हैं तो ये हो जाएगा -6। -6 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा -4। सो रिमाइंडर इज 2। इसी तरह 17 कॉन्ग्रुएंट टू x mod 3 का भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सॉरी, इक्विवेलेंट होंगे। अब ये हो गया, ये हो गया। बाकी देखिए कौन सा किसके बराबर है। 3 आपके पास बचे हैं। ओके, 1 मिनट, सॉरी, एक चीज 1 मिनट और देख लीजिए। 19 भी हो गया है, क्योंकि 19 वाला कॉन्ग्रुएंट टू x mod 3 मीन्स देख 19 कैन बी रिटन एज 3k प्लस x। सो अगर k को आप 6 लेते हैं तो x इज 1, दैट इज रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये तीनों बराबर है, तो ये भी हो गया। सो ऑटोमेटिकली दिस शुड कम आउट टू बी दिस, बट वेरीफाई कर लीजिए। और देखने से भी समझ में आता है, -6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो दोनों का रिमाइंडर 0 आता है। सॉरी, एक मिनट, दोनों का ही रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे ही होंगे। सो दिस इज हाउ, दिस इज हाउ, अगर आपको रिलेशन दिया हो तो आप इक्विवेलेंस क्लास जनरेट कर सकते हो। दो इक्विवेलेंस क्लास दी गई हैं, तो आप पता कर सकते हो कौन सी दो बराबर हैं। एक और प्रॉब्लम था, अगर हमने लिखा है तो ओके, नेक्स्ट में होगा। ओके, लेट्स कम टू द नाउ दिस वन। Now let's come to the theorem. The theorem says that let A be a non-empty set. Let A be a non-empty set and R be an equivalence relation defined on A. Let A and B belonging to be arbitrary, माने set A के हमने कोई भी दो elements ले लिए A, B, then first A belongs to equivalence class generated by A, B belongs to equivalence class generated by A implies equivalence class generated by B is same as equivalence class generated by A. अगर दो equivalence classes same हैं, so that means A is related to B by the relation R, and third, या तो दो equivalence classes identically same होंगी या उनका intersection phi होगा, माने they will be disjoint। अब चलिए इसको हम लोग अपने इस एग्जाम्पल से देखते हैं, ये जो हमने किया है। अब देखिए फर्स्ट क्या था, सॉरी एक मिनट, A belongs to equivalence class generated by A। अब आप यहाँ पे देखिए 0 belongs to equivalence class generated by 0, 1 equivalence class generated by 1 is this, and 1 is here, equivalence class generated by 2 is here, so 2 is here. So this tells you this is true with the example which we have done, but अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। दूसरा क्या है, अगर कोई एलिमेंट इस इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो अगर इस एलिमेंट से हम इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे तो वो दोनों इक्विवेलेंस क्लास बराबर होंगी। जैसे इस केस में देखिए, हमने इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0 क्या बनाई, 0 एंड 4। अब 4 बिलोंग कर रहा है इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0 को, सो इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 4 इज सेम एज इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1 को 3 बिलोंग कर रहा है, सो अगर हम 3 से अगर इक्विवेलेंस क्लास जो जनरेट करेंगे, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 1। तीसरा क्या है, अगर दो इक्विवेलेंस क्लासेस सेम हैं तो ये दोनों रिलेटेड होंगे। ऑब्वियसली अगर ये दोनों सेम हैं तो इनमें ये दोनों एलिमेंट तो होगा ही होगा, एंड ऑब्वियसली इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि दिस इज हाउ द इक्विवेलेंस क्लास इज फॉर्म्ड। और तीसरा क्या था, तीसरा नहीं चौथा था ये आइडेंटिकली सेम है या डिस्टिंक्ट है। अब इधर देखिए, आप इसमें आ जाइए,
इधर हमने देखा इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0 and 3 इज सेम, तो आप देखेंगे कि इनके सारे एलिमेंट सेम होंगे। बट अगर आप इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय 0 और 1 को लेंगे तो आप इसमें देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये क्लास लीजिए और ये क्लास लीजिए, इनमें देखिए कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये लीजिए और ये लीजिए, इसमें भी कोई कॉमन नहीं होगा। इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सो और ये देखिए आइडेंटिकली इक्वल, इनमें एलिमेंट्स कॉमन है तो ये आइडेंटिकली इक्वल है, और जो आइडेंटिकली इक्वल नहीं है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मींस देयर इंटरसेक्शन विल बी 5. So now let's come to the proof. Okay, first wala, R is an equivalence relation, so R is reflexive. R is reflexive means A is R related to A for every A belonging to A, and that tells you that A belongs to equivalence class generated by A by definition of equivalence class generated by A, क्योंकि उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A से रिलेटेड हो, और A खुद से रिलेटेड है इसलिए इस इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करेगा। Now, second wala, B belongs to equivalence class generated by A. That means B is related to R, या B comma A belongs to R. A B comma A belongs to R implies A comma B also belongs to R because R is symmetric as R is a equivalence relation. अब हमें ये प्रूफ करना है, अब इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय बी भी एक सेट है, इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड ए भी एक सेट है, और दो सेट्स को बराबर कैसे प्रूफ करते हैं? एक एलिमेंट इसमें से लिया इधर दिखा दिया, और एक एलिमेंट इसमें से लिया और इधर दिखा दिया, वही अब हम करेंगे। Let X belongs to equivalence class generated by B. This means X's are related to B. But यहाँ पे हमारे पास क्या है? B is R related to A. Now R is equivalence relation, therefore it is transitive. So this tells you X's are related to A, and that tells you that X belongs to equivalence class generated by A, and so this holds. इसको नाम हमने दे दिया 1. Now we take an element here. So let X belong to equivalence class generated by A. That means X's are related to B, and this tells you A is R related to B. So this gives you X is R related to B by transitivity of R, and that tells you X belongs to equivalence class generated by B. That is, this containment holds, and from 1 and 2, these two are equal. Okay. Next is, if equivalence class generated by A is same as equivalence class generated by B, this implies A is R related to B. This is given. That means if X belongs to equivalence class generated by A, which is same as equivalence class generated by B, this tells you that X's are related to A and X's are related to B. क्योंकि X belongs to this gives you X's are related to A, और क्योंकि ये इसके बराबर है तो X इसको भी belong करेगा, so this will give you X's are related to B. Now R is symmetric, so this I interchange and I write is B is R related to X because R is symmetric. Now B is R related to X and X is R related to A. That means B is R related to A by transitivity. And that tells you that A comma B belongs to R. And this proves, अच्छा इसमें if and only if है, तो ये एक पार्ट आपका प्रूफ कर देता है. Now the converse one. अब हम क्या करेंगे? We'll take an element. We will say that A is R related to B, and we'll prove that the equivalence class generated by them are identical. So let A comma B belong to R. So let X belong to equivalence class generated by A. This tells you that X's are related to A. And from here you have A is R related to B.
That tells you that x's are related to b by transitivity, and this tells you that x belongs to equivalence class generated by B. So what you have is equivalence class generated by A is contained in equivalence class generated by B. Name this as 1. Exactly इसी तरह जब आप करेंगे तो आपको दूसरे साइड का कंटेनमेंट मिल जाएगा, and from 1 and 2 you will have that these two equivalence classes are same. Okay, now the last part. You have to prove either this is phi or these two are same. तो हम assume करते हैं ये phi नहीं है. अगर phi नहीं है तो इसके intersection में कम से कम एक element होगा, उसको हमने x ले लिया. अब this means x belongs to equivalence class generated by A and x belongs to equivalence class generated by B. So this tells you that x's are related to A and this tells you that x's are related to B. Now, by symmetry, this I can write as A is R related to X. And this gives you A is R related to B by transitivity of R. And ये हमें इस पार्ट से मिल जाता है, ये जो थर्ड पार्ट था, that this equivalence class generated by is equal to equivalence class generated by if and only if AB belongs to R. Now हमारे पास क्या हो गया? A is R related to B. So you have equivalence class generated by A is equal to equivalence class generated by B from third part of the same theorem. So अगर ये phi नहीं है तो ये identical होंगे, और अगर ये identical नहीं है तो ये phi होगा. So this proves the fourth part. So this theorem tells you that either two equivalence classes are identical or are completely disjoint. और इसकी यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे सेट को पार्टीशन करने के लिए. माने एक सेट को हम कैसे पार्टीशन कर सकते हैं उसको करने के लिए. सो दैट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay, then you all can leave. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Welcome. Welcome.